So let's move on to the question and answer session now. Inshallah. So some of you have already sent some questions in the chat box, and we'll pick on them. And if you think of something as we go along, please do type the messages in the chat box, and then we'll take them up one by one. So the first question, I think this is a sign of the times and a sign of how fed up everyone is of this pandemic. The first question that showed up in the chat box was, when will this pandemic end? Okay, so I think I'll just unmute all the panelists and we'll see if any one of them has the answer to this question. Yeah, can I please? Yes, please, Tariq. ठीक है, हम लोग स्पेनिश फ्लू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेनिश फ्लू करीब 3 साल चल गया था, यानी 2 साल कुछ महीने चला था। लेकिन उस वक्त क्या था ना, ट्रेन थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के जरिए जाते थे। तो इंडिया में जो पैंडेमिक आया था काफी दिनों के बाद आया था, सेकंड वेव में आया था। अभी क्या है, हम लोग का फ्लाइट का जमाने में जी रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि चीजें बहुत तेजी से फैल रही हैं। तो आप ये देखें कि 6 महीने के अंदर में लगभग पूरी दुनिया में बीमारी पहुंच चुकी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, दिस इज जस्ट बीइंग ए पॉजिटिव पर्सन, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने में इंशाल्लाह जब 50 से 60% लोगों को ये बीमारी आइदर एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक हो जाएगी, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी। तो मोस्ट लाइकली ये बीमारी किसी वैक्सीन के आने से पहले खत्म हो जाए, और जो वैक्सीन बनेगी वो सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और स्पेशल ग्रुप लोगों को दिया जाएगा, जैसे जो डायबिटिक्स हैं या जिनको ओल्ड एजेड हैं। तो मेरे हिसाब से अगले 6 से 7 महीने में इंशाल्लाह ये बीमारी खत्म हो जाएगी। दिस इज माय ओपिनियन। Thank you, Tariq. Anyone else more optimistic than Tariq? I think the short answer is, like Tariq said, I mean, this is something new for all of us. Like, there are parallels in history that we can draw upon. So I think it's a fair comment to say, like Tariq explained, that we hope maybe in the next 6-7 months we should get over the worst of this. Inshallah. And again, it depends on whether or not we develop some treatment or some vaccines for this, inshallah. Okay, next question is, what technique is the most protective for prevention and precaution for this? Habiba, do you want to take this question? Well, I mean, the protection and the protective techniques, stay in your house. As long as you stay in your house, you are within your own environment. और अपने घर पे हैं तो आप घर के बादशाह हैं, बाहर निकलेंगे तो फिर कोई और बादशाह दिखा सकता है आपके साथ। तो ये वायरस किसी को बख्शता नहीं है, जैसे कोई और डिजीज नहीं बख्शता। इट इज क्वाइट एन इन्फेक्टिव डिजीज। तो घर के बाहर जब निकलें, नाक, मुंह और आंख न छुएं, पहली चीज। डोंट टच सरफेसेस विदाउट अ रीजन। अगर आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं तो उसी चीज को छुएं, ज्यादा चीजों में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वरना चांस ऑफ यू गेटिंग इन्फेक्टेड गोज अप। बिल्कुल जब जरूरत हो तो बाहर निकलें, चाहे भले ही काम से जा रहे हो, चाहे काम पे जा रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपको एक क्राउडेड एरिया में जाना है, बहुत जरूरी है, तो वियर अ मास्क और कवर योर फेस, नोज एंड माउथ। इन द इवेंट आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें क्राउडेड स्पेसेस में जाने से, दैट इज द बेस्ट। और वॉश योर हैंड्स, वॉश योर फेस as and when required. घर पे लौटने के बाद make sure you change your clothes before interacting with other people in the house. एक important area जो है, जो cars और scooters और motorcycles हैं, they also need to be cleaned just like the house. इस pandemic time में make sure that you wipe down your car bonnet, कार का अंदर के surfaces जो हैं, quite frequently. I'll say at least 2 to 3 times a week. Thank you, Habib bhai. I think इस पे एक comment आया है from Rana Siddiqui Sahiba about staying in house being a thing that only rich people can do. I mean, we don't disagree with that sentiment, ma'am. The problem is that still remains the most effective
prevention strategy. Whether or not anyone can follow that or not is besides the point. And it's not just in India that it's a problem. It's across the world. We have people here in the UK who are not able to stay at home. We have poverty here, and I your point is completely taken. I mean, it's not. We're not saying that that's the only preventive strategy, but it's shown to be the most effective one as of now. So. I mean, whoever can do it must do it. If you can't do it, then obviously there are other things that you should do, like hygiene and things like that, and at least maintain social distance as much as you can. Okay, there's a question about specific to India. Khalid bhai, जी हेलो जी बताएं. खालिद भाई, एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो आप लोग सब सारे लोग बैठे हैं, मुझे आप लोग भी राय दीजिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन. एक डेड बॉडी से वायरस जो है यूजुअली ट्रांसमिट नहीं होता है. डेड बॉडी, हम लोग अपने डेड बॉडीज को इस तरह से क्यों जो है ट्रीट कर रहे हैं? व्हाई वी हैव क्रिएटेड सच ए पैनिक, सच ए फस? लोग डेड बॉडीज को ट्रक से उठा रहे हैं, गड्ढे में फेंक रहे हैं, उसको डिसेंट ब्यूरियल नहीं दिया जा रहा है, उसको क्रिमेशन में आफत आ रही है. तो हम डॉक्टर्स की ये ड्यूटी भी है कि इस चीज को समझाएं. A dead body is much less infectious as compared to someone like me or someone like you who is speaking, who is sneezing, who is coughing. Is it? Am I right or wrong? No, absolutely, Tariq. I think a lot of the problems that iski wajah se hui hain aajkal, unfortunately, in the last few months, this disease has been treated as a stigma rather than a disease, and I mean, and not just in India. I mean, India में थोड़ा सा ज़्यादा होगी problem, लेकिन और जगह भी it's being treated more as a stigma, and that's why ये सब उसकी offshoots है. ये जो problems होती हैं, एक चीज़ को आप अगर ये बना दें, जैसे एक ज़माने में HIV था, तो HIV के आप मरीज के आसपास भी जाना, मतलब आपको डर लगता था. Education बढ़ी, awareness बढ़ी, and now gradually we've got over that phase. I think this is just a matter of time. नई चीज है, अनप्रेसिडेंटेड चीज है. दुनिया हमने हमारे पेरेंट्स ने, हमारे मतलब 2-3 जनरेशंस ने कभी दुनिया इस तरह बंद नहीं देखी. तो आई थिंक इट्स जस्ट फियर साइकोसिस भी है, थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा स्टिग्मेटाइज कर दिया गया. आई थिंक दैट्स ऑल कम टुगेदर, और उसके ऑफशूट्स हैं ये सारी प्रॉब्लम्स. तो द आंसर ऑब्वियसली इज एजुकेशन. तो I don't know how many of you are aware, लेकिन तारिक has made several videos of Facebook पे अपने डालते रहते हैं, and I mean I would highly recommend that you either watch them or forward them on to other people, because I think ऐसे programs और होंगे इंशाल्लाह, interaction होगा, तो hopefully the idea is कि इंशाल्लाह there'll be a time when people will overcome this fear इंशाल्लाह. Okay, thank you Tarik. Right, next question. एक और क्वेश्चन है इंडिया से स्पेसिफिक, और हो सकता है सऊदी में भी एप्लीकेबल हो, कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू कीप सेफ इन इंडिया जहाँ पे टेस्टिंग इज एक्सट्रीमली लो. सो I mean, before I hand this over to maybe Habib bhai, probably or Shamim is probably Shamim is gone for Maghrib वहाँ पे इंडिया में, ईशा, sorry. हबीब भाई बता सकते हैं इसके बारे में, but I think Indian context में it's impossible to test everyone. I mean, it's just not possible. So I think that we need to get that point out of the way first. कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सबको बहुत टेस्टिंग कम है. Undoubtedly कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी शायद नहीं है, लेकिन logistically it's impossible to test everyone. हबीब भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मेरे हिसाब से जो मैं समझ रहा हूँ इंडियन सिनेरियो को, और फॉर दैट मैटर कहीं भी आइए आप, अगर किसी को इन्फेक्शन लग जाता है और उसको कोविड-19 की पॉसिबिलिटी होती है, जिसका मतलब ये है कि बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, सांस फूल रही है. बुखार अगर आ रहा है, खाली बुखार अगर आ रहा है तो बुखार की दवा लें, खांसी हो रही है तो उसका इलाज करें. लेकिन अगर सांस फूल रही है, और खास करके सांस फूल रही है जीना चढ़ने में या तेज चलने में, तो मेरे हिसाब से वो एक ऐसा टाइम है जब आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि चांसेस ये हैं कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है.
तो इंडिया में जिसको लेवल 1 सेंटर्स बोल रहे हैं या लेवल 2 सेंटर जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, लेवल 1 सेंटर में जाके दिखाएं और लेवल 2 सेंटर में एडमिशन होगा। सऊदी अरेबिया के अंदर ततम्मन क्लिनिक के बाद दे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल्स अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है। अकेला तरीका जो है वो टेस्ट करने का है, और टेस्टिंग अगर प्रॉब्लम है तो आपको सिम्टम्स बेसिस पे ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि पहले हर पुराने डिजीज में करते आ रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट होता है सेम वे। लेकिन ये एक ऐसा डिजीज है जो कि सांस उखड़ती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, और उसी की वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं मरीजों को। तो मेक श्योर अगर सांस फूलना शुरू करे तो सीक मेडिकल अटेंशन। Thank you, Abhi bhai. Thank you. Yes, sir. या रिगार्डिंग टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग के बारे में WHO ने जो किया ना, उसका जो है ज्यादा अच्छा रिकमेंडेशन हमें NHS का लगता है, जो आपकी कंट्री फॉलो कर रही है, यूके। We cannot test everybody. Let us be very frank. We cannot test everybody. Just those who are having issues, only they can be tested. One. Second, let us consider everybody to be corona positive. इससे क्या आता ना, स्टिग्मा भी सोसाइटी में खत्म होगा। ठीक है भाई, कोरोना पॉजिटिव हो गया था। और एक और चीज है कि जब एक बार कोरोना पॉजिटिव आपको हो गया, एंड स्पेशली इफ यू वर सिम्टोमेटिक, ज्यादा सिम्टम्स थे, आप ये मान के चलें कि यू आर सेफ फॉर द नेक्स्ट 6 months एटलीस्ट। वी कैन नॉट बी वेरी श्योर, लेकिन फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीजंस यू कैन से दैट यू आर सेफ फ्रॉम दिस इन्फेक्शन फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months। और इसीलिए जो शमीम भाई बात कर रहे थे, सेरोलॉजी टेस्टिंग की बात कर रहे थे, इंडिया ने कोरोना कवच के नाम से इस टेस्ट का शुरुआत किया है, अभी दिल्ली से शुरू हुआ है, जिसमें वो IgG को टेस्ट कर रहे हैं, जिसके बॉडी में IgG टाइटर है जो फाइट कर सकता है कोरोना से, वो कोरोना वॉरियर्स की तरह फ्रंट पे काम कर सकते हैं। स्पेशली ये बहुत अच्छी चीज है हॉस्पिटल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, कि जिनके अंदर IgG पॉजिटिव है, उनके टाइटर स्ट्रॉन्ग है, उनको आप फ्रंट पे भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन है शमीम भाई से। शमीम भाई, am I right that those who are having good titer of IgG against the coronavirus, they can work safely as corona warrior? I mean, until unless some immunity, some mutation takes place in the virus. Yes. Dr. Tariq, you are absolutely right. But you have to check the titer of the healthcare worker. If it is above say 640 and around, so he can safely work. Yeah, thank you. Sir. But that too also with PPE kit, no? full protection. With PPE kit. I think क्योंकि इतना नया One thing, Khalid. Yeah. Sorry. I want to share my experience regarding droplet infection in this. When we were working in respiratory zone, even we noticed that we are working with the PPE kit and everything. We are interacting more than 50 patients per day positive. It is not like that the disease is going to catch you. It is not airborne infection. This is droplet infection. So if you are wearing N95 and above N95, we were using surgical mask. Surgical mask we were throwing, and again we were wearing surgical mask, so that we were saving like N95 mask. So if you are using this double protection, the chances are very rare that you will catch COVID. And eye protection is there. There are glasses and eye protection, and this N95, that is enough for you. And if you are taking care of your this, fomite is still under observation. Am I right? We can check with the still. This is an hypothesis that fomite is transmitting. The main mode of transmission is still droplet infection. So we should not jump. And I have seen, this is my observation in hospital, that those people who are working in ICU and those who are working in COVID area, respiratory zone, the healthcare workers are more safe than those who are working in ordinary areas. They are getting infected. So even we people, we are taking our breakfast in respiratory zone. We are taking tea and coffee. It is not like that we are packed since morning like that. This is the stigma in India. Shamim is smiling. He can give more. Dr. I Farooq, see it is a stage of panic in India. The healthcare worker who is working in ICU, he is taking full precaution in Even full me. PPE kit. Yes, that's why they are safe. If those who are working in remote areas, they are not taking any precaution. That is why they are infected. So if you are working in ICU, you are taking full precaution. You are taking a shield also, your N95 mask also, PPE kit also. And from where you will get the infection? एक और चीज है, I think we've got a lot of non-medics in the audience as well. So
these things are relevant to medics, लेकिन general population के लिए this it still holds true कि you have to take precautions, like Farooq said and Shamim said, कि people who are in the highest risk areas, who are taking adequate precautions, are not getting infected. या mild infection हो रहा है उनको. So this proves कि just taking precautions, staying away from people who are infected, wearing things like masks. अगर आप shopping करने जा रहे हैं, you don't need an N95 mask. You just need a normal mask that stops you touching your face, that stops your droplets coming out and stops others' droplets going into your mouth and nose. So basic precautions सबको लेने चाहिए. And the proof is कि जो precautions, जो doctors precautions ले रहे हैं, वो भी safe है उससे. Yes, Tariq. या एक क्वेश्चन था मेरा, ये खुद का सवाल है, क्योंकि शमीम भाई हैं और भी फारूक भाई वगैरह और लोग बैठे हुए हैं, कि जब हमने ये कह दिया कि डेड बॉडी जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज्यादा होता है, तो एक डेड बॉडी जो खांस नहीं सकता है, छींक नहीं सकता है, उससे हमें इन्फेक्शन कैसे लग सकता है, सिवाय ये कि उसके जो है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, उसके नाक से अगर कोई पानी आ रहा है, उसके मुंह से कोई पानी आ रहा है, उसको हमने छुआ और अपने चेहरे को छुआ, यही तो है. अगर सिर्फ यही है तो हमने डेड बॉडीज का इतना बड़ा हवा क्यों बनाया है? क्या हम डॉक्टर्स एक कैंपेन चला सकते हैं? अभी देखिए कल की न्यूज थी कि उड़ीसा में एक साहब अपने डेड बॉडी को जलाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों ने जलाने नहीं दिया, अल्टीमेटली उसको बरी करना पड़ा. कश्मीर में एक साहब जो है डेड बॉडी जला रहे थे, बीच में एक मॉब आ गई पत्थरबाजी करते हुए, हम इस बॉडी को यहाँ जलने नहीं देंगे. तो ये जो लैक ऑफ एजुकेशन है, और WHO ने जो गाइडलाइंस दे दिया उसने बहुत मिसगाइड कर दिया है. आई डोंट थिंक सिर्फ एक केस रिपोर्टेड है डेड बॉडी से डॉक्टर को हुआ था, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट था, जो कि पोस्टमार्टम कर रहा था. तो एक पोस्टमार्टम करने वाले को तो हो सकता है क्योंकि उसने प्रिकॉशन नहीं लिया था. क्या कोई भी ऐसा एविडेंस है कि किसी डेड बॉडी से एक नॉर्मल इंसान को इन्फेक्शन लगा हो? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ स्पेशली शमीम भाई से, क्योंकि वो इंडिया में वर्क कर रहे हैं. क्या कोई डेड बॉडी से डायरेक्ट इन्फेक्शन हुआ है किसी को? मुझे नहीं लगता कि ये हवा ज्यादा, जैसा आप कह रहे हैं ना, इसका हवा ज्यादा बना रखा है कि यहाँ पे मैंने देखता हूँ अलीगढ़ में लोग डेड बॉडी क्लेम नहीं कर रहे हैं. डेड बॉडी को नगर निगम वाले ले जाते हैं और जो भी रिलीजियस वो बिलीफ्स के हिसाब से उसको बरी करते हैं, जला देते हैं. हमारे यहाँ जो फर्स्ट डॉक्टर्स, of course, because this is giving rise to a lot of anxiety to all the patients who are corona positive. I mean, why such a fuss on dead bodies? और मैं एक चीज बताऊं आपको, एक फीमेल की डेथ हुई थी and she was wearing gold worth 2 lakhs of rupees. वो तक जो है पेशेंट के अटेंडेंट ने उसका नहीं निकाला, वो गोल्ड भी उसके साथ ही जला दिया कि गोल्ड से हो जाएगा उसको. मतलब ये इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं. So we need more interaction to educate people. Khalid bhai, we need more interaction. Yeah, inshallah we'll इसके बारे में कुछ करते हैं. We'll come up with some more this thing. लेकिन I think we've got a lot of questions to get through. So ठीक है, वो कर लेते हैं. I think your point is taken. I think there is a big problem that needs to be addressed. इंशाल्लाह उसके बारे में फिर वो करेंगे, बात करेंगे. So Khalid. Yeah. I want to ask one question from Shamim. In Indian scenario, what we are doing to, what you people are doing to declare the patient negative? Yani he is not infectious. How you will declare the patient? In Indian scenario, not here. Here we know, we are following few guidelines. It's very clear for us. Infectious disease protocol is there. So even you are doing retesting or not? Yes, if the symptoms is consistent with influenza, and there is on the X-ray picture there is a shadowing. Shadows are there, bilateral shadow, lower zone shadow. If the patient comes out to be negative, then we send a repeat sample. We have seen that after 2 negative sample, we get third positive sample. The same patient. This is the problem, Shamim. I want to share our experiences here. That even those patients who are totally cured, sometimes repeated sample up to 3 weeks they are positive. So now the repeat testing is not mandatory to declare the patient that he is non-infectious. If the patient has passed 3 days asymptomatic. Yeah, this is the guideline from ministry. Yeah, 3 days asymptomatic, he should be considered as non-infectious. Yes.
Same Tariq, here. sorry, फारूक, the thing is कि हम लोग जो चेक कर रहे हैं वो वायरल पीसीआर चेक हो रहा है. जी जी. अगर प्रोटीन मौजूद है उसकी नाक और थ्रोट के अंदर तो वो पर्सन पॉजिटिव आएगा. Sure. Okay, so that is not a sure shot way of testing कि ये पर्सन इन्फेक्टिव है या नहीं है. जी. इन्फेक्शियस कंट्रोल गाइडलाइंस जो हैं, जो अब WHO ने अपडेट की हैं, उसके हिसाब से once the infection is taken care of, ठीक है, and a amount of time is passed, total duration being 14 days, the person becomes non-infective. That is what they are following for mild to moderate illnesses. और वही हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं. दोबारा हम टेस्ट सिर्फ तब करते हैं अगर पेशेंट को हमें हाई रिस्क एरिया में वापस भेजना है, जैसे नर्सिंग होम्स. हम यहाँ पे सब बंद हो गया, आप नहीं कर रहे यहाँ पे रियाद में. दैट इज द ओनली वे, क्योंकि वहां पे जाके औरों को इन्फेक्ट कर सकता है वो, इस वजह से चेक कर रहे हैं हाई रिस्क एरिया के लिए. अदरवाइज वी आर नॉट डूइंग इट. तो ये टेस्टिंग इज फ्यूटाइल. मेकिंग अ डायग्नोसिस के लिए तो हम लोगों ने अप टू 6 सैंपल्स तक किए हैं पेशेंट्स के, and the 6th one came back positive, but that's a different story altogether. That's a different story altogether. Okay. और एक चीज फारूक, और जैसे जिन पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं हम लोग, उसमें भी नेगेटिविटी काफी लेट आती है उसमें. अच्छा. चलिए, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आई थिंक ये हबीब भाई के लिए क्वेश्चन है कि आर देयर एनी सिम्टम्स जिससे बिना इन्वेस्टिगेशन के कंफर्म हो सकता है कि आपको कोविड-19 है? नहीं, आप शुभा कर सकते हैं कि इसको कोविड हो सकता है, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के अभी तक कोई ऐसी श्योर शॉट सिम्टम नहीं है जिससे कि आप कहें कि भाई इसको कोविड है. जैसे मलेरिया में होता है, जाड़ा लग के बुखार आता है और पसीने आते हैं, इस तरह का कोई सिम्टम कोविड में नहीं है. बुखार है, खांसी है, डायरिया है, स्मेल आपकी चली गई है, ये सब सिम्टम्स हैं, लेकिन ये कोई श्योर शॉट कोई भी सिम्टम नहीं है कि भाई ये सिम्टम अगर है तो आपको कोविड है. ऐसी कोई चीज नहीं है. आई थिंक सबका कंसेंसस ये इसमें, आई थिंक और लोगों से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आई थिंक दिस इज द यूनिवर्सल कंसेंसस इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू डिक्रीज मोर्टेलिटी इन समवन हु हैज नो कोमॉर्बिडिटीज. शमीम, Can you repeat your question? How to decrease mortality in someone who has no comorbidities? There's already very less mortality in those who don't have any comorbidity. I think और कोई अभी भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, वैसे एक बड़ा अच्छा कॉकटेल बताया था तारिक साहब ने. तो वो विटामिन डी और विटामिन सी और जिंक और ये सब चीजें जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, सो कॉल्ड इम्यूनिटी बूस्टर्स, वो आप और ले लें, तो दैट विल गिव यू द एडेड मेंटल पीस दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग. राइट, एडेड मेंटल पीस. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू मोस्ट पीपल इन इंडिया नॉट हैव एनी सिम्पटम्स? बिकॉज़ 85% पीपल डोंट हैव सिम्पटम विद द डिजीज. ठीक है. आई थिंक जिसने भी ये सवाल पूछा था, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 85% लोगों को इन्फेक्शन होगा और उनको हो सकता है पता भी ना चले, या बहुत ही माइल्ड सा खांसी नज़ला टाइप की चीज होगी, खत्म हो जाए. एंड खालिद भाई, एक क्वेश्चन जो बराबर हमसे भी लोग अभी व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, यंग पेशेंट्स क्यों मर रहे हैं? एक्चुअली ये समझने की जरूरत है कि ज्यादा इम्यूनिटी भी खराब होती है बॉडी के लिए. इफ आई एम राइट शमीम भाई, जिसको हम लोग कहते हैं, आप ऐसे समझें. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके घर में कोई चोर आता है तो एक बूढ़ा आदमी क्या करता है, उसको जो है कुछ नहीं कहता है, खामोशी से बैठ गया. लेकिन क्या होता है, आप जवान हैं, आपने अंदर से आवाज लगाई, अब तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, चोर ने उसी टाइम शूट कर दिया. कभी कभी ज्यादा इम्यूनिटी, इसको कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं मेडिकल टर्म में. तो कभी कभी हर इंसान का जिस्म अलग है. यंग पेशेंट्स में साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको कहते हैं ज्यादा एक्सेस इम्यूनिटी पावर, ज्यादा लड़ने की ताकत जो है, वो ज्यादा जंग लड़ने की कोशिश करता है, और उस चक्कर में कभी कभी इंसान की डेथ हो जाती है. इफ आई एम राइट, इफ आप लोग सब लोग एग्री करें तो खालिद भाई एंड. हाँ, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लोगों का इम्यून सिस्टम डिफरेंटली वर्क करता है. देयर इज नो सिंगल आंसर टू दिस. कोई भी दो पेशेंट्स जो है सेम बिहेव नहीं करते, सबकी बॉडीज अलग तरह से रिएक्ट करती हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं
इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो इसी में आंसर कर सकते हैं हम लोग कि इंडिया में यंग लोगों की डेथ की खबर आती है तो व्हाई आर यंग पीपल डाइंग, और द आंसर इज कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी, आपकी कोई और बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में जो शो अप नहीं करती है जब तक कोई और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो या स्ट्रेस हो आपकी बॉडी में। वो रीजन हो सकता है जैसे तारिक ने कहा कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डिफरेंटली रिएक्ट कर रही हो एंड बजाय फायदा होने के आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है इम्यूनिटी से। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर खालिद ये भी है कि यंग लोग जो है ना, दे आर मोर डेयरिंग फिजिकली, तो Physical exertion. दे गो फॉर मोर इंटरेक्शंस, ज्यादा लोगों से मिलेंगे और दे गेट अ हायर डोज ऑफ इन्फेक्शन, अ हायर डोज ऑफ वायरस, और दैट इज अ बिग फैक्टर कि जिसकी वजह से लोगों की एडवर्स आउटकम्स होते हैं। Okay, thank you, Vibhay. Okay, Shamim, I think we'll have this question. What are the long-term consequences or complications of COVID-19 infection? What we are seeing that after patient became negative, he still complains that he's having shortness of breath. After 1 month or 2 months also, सांस फूलना की वो complain करता रहता है. तो maybe because there is a chance that he had developed fibrosis, lung fibrosis. So but यही complain, हाँ, जिन लोगों को मालूम नहीं फाइब्रोसिस क्या होता है, लंग स्टार्ट श्रिंकिंग, मतलब ऐसे है ना कि एक लंग श्रिंक हो गया, जैसे जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया लंग का, दैट्स लंग फाइब्रोसिस। बेसिकली लंग डैमेज हो गया, लंग डैमेज होता है। एआरडीएस का जो लास्ट स्टेप होता है फाइब्रोसिस होता है। तो फाइब्रोसिस के बाद कोई रिकवर कर रहा है, स्कारिंग, वॉल्यूम ऑफ द लंग डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई कंप्लेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये हम लोग काफी फ्रीक्वेंटली सीटी स्कैन, रिपीट सीटी स्कैन में देख रहे हैं, स्पेशली जो लोग वेंटिलेटर से होकर लौटे हैं उनके अंदर फाइब्रोसिस या स्कारिंग लंग की जो है वो काफी देखने को मिल रही है, और उनकी जो सैचुरेशन और लंग जो इफेक्टिव लंग वॉल्यूम है वो कम हो जाता है उन लोगों का, स्पेशली स्मोकर्स। हाँ, ये स्मोकिंग का क्वेश्चन इस बार नहीं आया, पिछले हफ्ते जजान में आया था। अल्कोहल का भी आया था। आई थिंक शुरू में जब ये शुरू हुआ था पैंडेमिक, तो एक फ्रेंच पेपर एक पब्लिश हुआ था जिसमें ऑल दिस सेड वाज कि जो उन्होंने आईसीयू में पेशेंट्स थे, उनके जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे, उनमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नंबर ऑफ स्मोकर्स जो थे वो कम थे कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। तो उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने ये करा कि स्मोकिंग जो है वो प्रिवेंट करती है, स्मोकिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग कोविड-19। ऐसा नहीं है, उसमें उसी पेपर में नीचे ही लिखा हुआ था कि इफ यू डोंट ऑलरेडी स्मोक, यू शुडंट स्टार्ट स्मोकिंग नाउ। Smoking is definitely harmful, and any thing that damages your lungs already is definitely harmful to you, not helpful. Sorry, Ashram Malik साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? I'll just unmute. हेलो। हाँ, मैं बिल्कुल 2-3 शॉर्ट कमेंट करूंगा, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को विदा लूंगा। नंबर 1, एक सवाल किया गया था कि कब खत्म होगा, तो कब खत्म होने का एक्चुअली नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज जो होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज अफेक्टेड होती है किस वक्त आपने इंटरवेंशन किया। यहाँ पर इंटरवेंशन जल्दी हो गया है तो चांसेस यही हैं कि ये बहुत ज्यादा दिन लंबा नहीं चलेगा, पीक पहुंचने के बाद डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो वैसे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन किसी ने शायद ये कहा कि 3 साल 4 साल का एग्जाम्पल दिया स्पेनिश फ्लू के हिसाब से, तो ये मेरे ख्याल में इतना लंबा नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन 17 जून को एक पेपर पब्लिश हुआ है यूएसए में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, और उसके अंदर ये खास तौर से लिखा गया है, ये वो बहुत अच्छी स्टडी है, और उसमें यह है कि MMR has got definite role in preventing the disease among and the husband-wife team which has done this study, they have seen that those who have received MMR, and especially in the forces, what happens in US armed forces, that they are, when they are sent anywhere, they are given MMR vaccine.
all adults are given. And therefore, out of the 20 people who were suffering in one of the naval ships, only 19, all 19 were normal. One had, but it was also mild. So this is one thing that MMR definitely has got role, and since it is a very, very cheap and affordable vaccination, all those who are susceptible are more likely to have. I'm talking in with regard to Indian scenario, that if all 60 above people and those who are below that, below 10 years of age, they should get an MMR vaccine just to boost up the immunity, because there is a correlation which has not been well studied till now, but what the initial results says that it may help. The second warning which I want to give is that this is going to have a very bad impact. Coronavirus is going to have very bad impact on the measles program which India is having. Measles is going to come in a big way, and with severe times of hemorrhagic measles is likely to be there. And this is because not only because of the immunity which is less because of the virus and viral infection, but also because of the fact that I am sorry to inform each and every one of you, wherever you are, that for some reason, at least in Uttar Pradesh, I know that all government hospitals have stopped routine immunization program since coronavirus infection is there, according to their belief कि जो आदमी इंजेक्शन लगाएगा वो कोरोना अंदर घुसा सकता है. तो मैं एक छोटी सी अपनी क्लिनिक रन कर रहा हूँ प्राइवेट, और उसमें मैंने मेरे नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ वैक्सीनेशन बढ़ गए, तो मैंने पूछा कि कहाँ क्या बात है, तुम लोग जहाँ लगवाते थे वहाँ लगवाओ, गवर्नमेंट में तो फ्री लगती है, मैं तो पैसे लूंगा क्यों, मुझे तो वैक्सीन खरीदनी पड़ती है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी अस्पताल जो है वो वैक्सीन लगा ही नहीं रहा है. तो पिछले 4 महीने से बच्चों को कोई वैक्सीनेशन रूटीन इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, जिसमें मीजल्स भी इंक्लूडेड है, जिसमें MMR भी इंक्लूडेड है. तो मैं ये कहता हूँ कि एक बहुत बुरी तरह से एक महामारी जो है वो दूसरी किस्म की कुछ दिनों बाद यू मे सी इन दैट. लास्ट कमेंट आई जस्ट वांट टू से, शमीम ने कहा कि जिसको सांस फूले, मेरे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको एजमा हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, कॉफ भी हो रहा है, एजिथ्रोमाइसिन दे रहा हूँ एंड वो दे रहा हूँ, लेकिन ये कैसे पता चले कि वो कोविड वाले हैं या नहीं है, क्योंकि सांस तो हर एजमा, चाहे एडल्ट हो चाहे वो, सबका सांस फूलेगा. इसका जवाब मैं शमीम साहब से चाहूंगा बस. जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा रहा आप लोगों का प्रोग्राम, और खुदा आप लोगों को खुश रखे. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और खासतौर से वजी साहब, तारिक साहब, और तारिक की टॉक बहुत अच्छी थी, ये मुझे कहना चाहिए. और खालिद रज़ी ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया, बस बेचारे को एक ही दफा चाय मिली, उसके बाद पानी पीता रहा. और अर्शी मलिक जो है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये सब पॉसिबल किया. आई एम प्राउड ऑफ हिम. हाँ सर, आप मेरी शमीम साहब से 1 मिनट बात कर बता देंगे. शमीम के जवाब के बाद एक चीज मुझे भी पूछनी है आपसे. सॉरी शमीम, पहले आप पूछ लीजिए. नहीं शमीम का जवाब ले लेते हैं पहले. पानी पिए जाओ बस. अच्छा, ब्रोंकाइल अस्थमा जैसा कि रिवर्सिबल डिजीज है, व्हेन यू जब हम लोग मैक्सिमम ट्रीटमेंट जो दें उसके बाद भी अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा है, जैसे इनहेल स्टेरॉइड है, IV स्टेरॉइड्स हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट, उसके बाद भी अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, देन वी कैन सस्पेक्ट दैट पेशेंट इज हैविंग कोविड डिजीज. मरीज जो है वो घबरा के आता है, साथ कि इसकी सांस भी फूली है, बुखार भी है, नहीं अगर कोविड करवा ले, मैं कहता हूँ अभी ठहर जाओ, 2 दिन मुझे ट्रीटमेंट कर लेने दो, 3 दिन ट्रीटमेंट कर लेने दो, कुछ तो वक्त लगेगा, नेबुलाइजेशन दे दो, फिर उसके बाद करेंगे. वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई एम सेइंग, इट इज देयर, क्योंकि जनरल पब्लिक के दिमाग में ये सारी बातें नहीं जा रही हैं जो आप और हम कर रहे हैं ना. जी. आप समझ रहे हैं ना. वो तारिक ने बहुत अच्छा किया, इंग्लिश हिंदुस्तानी में बोला, बहुत खुशी हुई मुझे. कि वो जो है जनरल पब्लिक अगर इसे सुने, ऐसा मतलब यूट्यूब पे बाद में सुनेगी इंशाल्लाह, तो वो जो है वो जरा सा थोड़ा सा लेस मेडिकल टर्मिनोलॉजी, क्योंकि डॉक्टर्स को पढ़ाया था जिनको सब आता था. चलिए खैर, कोई बात नहीं. और हाँ खालिद साहब, आपका क्या क्वेश्चन है?
नहीं, आपका मैं इनपुट के बारे में पूछा, एक क्वेश्चन तो ये कि MMR जो आपने बताया वो एडल्ट्स को भी वैक्सीनेट जी जी जी, वो MMR पूरा लग जाएगा, वो कोई नुकसान नहीं करेगा आपको सर, बिल्कुल भी। खासतौर से आप इंटरवेंशनिस्ट हैं, आपको तो MMR लगवा लेना चाहिए, वो नुकसान नहीं करेगा आपको। इट्स नॉट क्या बूस्टर डोज हो जाएगी, आपने बचपन में लगा होगा आपको, इसीलिए बच्चे यहाँ पर नहीं अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ MMR हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम काफी अच्छा हो गया था हिंदुस्तान का। 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो थी। अब हमें रूबेला, डिप्थीरिया और उसके केसेस ही नहीं देखने को मिलते हैं। बहुत महीनों हो गए, जो सालों हो गए कोई डिप्थीरिया का पेशेंट देखा हो या उसका मीजल्स का, मम्स का देखा हो। मीजल्स आ जाती है जब जरा से थोड़ी यहाँ पर जाड़ों में, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेने में कोई बुराई नहीं है इसको। एक चीज और मुझे मालूम करनी थी, आपने जिक्र किया एक हस्बैंड वाइफ टीम का, तो मेरे ख्याल से एक हस्बैंड वाइफ टीम आपकी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और काफी लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत लोगों के जहन में है जो अभी हम एड्रेस कर सकते हैं कि वैक्सीन के बारे में है कि वैक्सीन डेवलप हो रही है। तो आई डोंट नो इफ प्रोफेसर आब्दुल मलिक एड्रेस कर सकती हैं इस चीज को कि वैक्सीन में कितना टाइम यूजुअली लगता है डेवलपमेंट में, और हम लोग कुछ उम्मीद रखें बहुत जल्दी? कोई बहुत जल्दी उम्मीद नहीं रखिए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन, डॉक्टर आब्दुल मलिक के साथ नमाज पढ़ रही है इसलिए मैं उनसे बात नहीं करा सकता आपकी। तो वो जो है वो लेकिन वो मैंने ये सवाल उनसे पूछा था, उनका जब भी वैक्सीन डेवलप हो जाएगी 3-4 महीने या 2-3 महीने में, 1.5 साल तक उसका जब तक ट्रायल ना हो जाए जब तक नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ 2 साल से पहले रूटीन वैक्सीनेशन जो है वो नहीं होगा, कम से कम एटलीस्ट आई एम टेकिंग 2 इयर्स, उससे पहले नहीं हो सकता है। और लोगों का कुछ और कमेंट हो इस पे या उनको मालूमात हो तो बता दें, मेरी इस पे ज्यादा नहीं है। वैक्सीन का ड्रामा यहाँ चल रहा है, कोरोनिल भी बन गया है यहाँ पर एक बहुत अच्छा, गोबर से, गौमूत्र से वो भी है, तो उसे आप कहते हैं कोरोनिल खाइए, कुछ भी खा लीजिए। इट्स मोर पॉलिटिसाइज्ड, मोर, कोई इंडिया में तो रिसर्च जो हो रही है वो कोई कुछ नहीं हो रही है, कहीं और से होके आ जाएगा। कोई अच्छा वैक्सीन होगा जिसका 1.5 साल तक कम से कम ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद ही वैक्सीन मिलेगा। आई डोंट थिंक दैट ए वेरी इफेक्टिव वैक्सीन विल बी अवेलेबल बिफोर 2 years. थैंक यू सर। ओके, खुदा हाफिज, शब खैर। शुक्रिया बहुत बहुत आप पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी एंड डज इट हैव पोटेंशियल? हबीब भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे? भाई शमीम साहब तो प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी क्या है बेसिकली, कि जो आदमी ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जिसकी कि हमारे पास एविडेंस है कि इसको कोविड हुआ है, उसके जिस्म से जैसे हम ब्लड लेते हैं किसी के ट्रांसफ्यूजन के लिए, उसी तरह से ब्लड का एक हिस्सा है प्लाज्मा। तो उसको लेकर उसमें एंटीबॉडी होती हैं जो कि वायरस के खिलाफ एक्टिव होती हैं। तो वो एज अ इन्फ्यूजन, यानी कि जैसे कि हम फ्लूइड देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं वेन्स के अंदर, वैसे ही प्लाज्मा लगाते हैं। और ये प्लाज्मा जो है, अगर वायरस आपके जिस्म में है तो उससे फाइट करके आपको आराम देगा और आपको क्योर देगा। ये एक आइडिया है जिसके बेसिस के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। और प्लाज्मा थेरेपी जो है वो इफेक्टिव है बहुत सी और कंडीशंस में, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू टेटनस। बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल टेटनस है उसका। तो प्लाज्मा थेरेपी जो है ये इफेक्टिव है। इससे ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज भी कम किया गया है और इसका एविडेंस मौजूद है, अमेरिका से पेपर्स आए हैं इसके बारे में। और क्योंकि वहां पे उन्होंने करीब 20,000 लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं प्लाज्मा थेरेपी वो लोग। इंडिया में जैसे शमीम साहब ने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे प्रोफेसर थे ENT में, उनको भी प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी जब उन्हें कोविड हुआ था एंड ही रिकवर्ड। तो एटलीस्ट थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। प्लाज्मा थेरेपी की बस 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज अवेलेबिलिटी की है और दूसरी चीज ये है कि अगर आप प्लाज्मा को विदाउट एडिक्वेट स्क्रीनिंग के देंगे तो अगर कोई और इन्फेक्शन हुआ उस आदमी में जहां से आप ले रहे हैं उस प्लाज्मा को, तो ये आप इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट कर देंगे, जैसे हेपेटाइटिस। तो रिगरस जो है वो क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग जरूरी होती है जो ब्लड बैंक्स करते हैं, दैट इज मैंडेटरी। Thank you, Habib bhai. Shameem, anything to add? Yes. No, everything has been answered. The only thing is that it should be ABO compatible.
and the titer of the antibody should be very high in the donors plasma. तो मैं कुछ पोटेंशियल है, लेकिन अभी पूरी तरह वो Potential है. In Bombay, world largest trial is going on plasma therapy. They have started world largest trial. And Delhi में भी एक plasma का एक बैंक भी yesterday it was inaugurated. तो potential तो है, लेकिन ये है कि trials के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या है. अभी concrete evidence अभी तक नहीं है. Concrete evidence नहीं है जी. Next question, ये मैं आंसर कर देता हूँ. How dangerous are claims by pseudoscientists? Very dangerous. तो इसका और कोई जवाब हो नहीं सकता मेरे ख्याल से. Next question, I think फारूक एंड तारिक, आप लोग ये शायद ज्यादा एड्रेस कर पाएंगे लोकल सिचुएशन के हिसाब से. What precautions should one take in groceries, in markets and grocery shopping and मेरे ख्याल से इसमें और चीजें भी कर लें आपके, और कहीं आउटडोर कोई भी एक्टिविटीज हो उसमें, स्पेशली विद रेलेवेंस टू सऊदी जो है, या कुछ चीजें इंडिया के लिए भी रेलेवेंट होंगी, क्या करना चाहिए? जी सर, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन बताया जा रहा है कि हम मास्क पहनते रहें, तो भी सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें, अननेसेसरी सोशल विजिट्स को अवॉइड करें. बिल्कुल, जैसे अभी भी हमारे घर में कुछ लोग आ गए सोशल विजिट पे. एक्चुअली इट शुड नॉट हैपन. एक्चुअली हम लोग को इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा. अच्छा, अब ये बहुत से लोग पूछते हैं कि जब 50-60% लोगों को जब होगी बीमारी तभी ठीक होगी, तो हम क्यों नहीं जो है मिल रहे हैं लोगों को. तो एक चीज होती है फ्लैटन द कर्व. तो व्हाट इज दिस फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व जो हम लोग बार बार करते हैं? मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूएस नेवल बेस का, जो कि सैन फ्रांसिस्को में था. वहां के लोगों ने अपने आप को 2 साल के लिए बंद कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने खोला था उसके बाद भी करीब 3 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन ज्यादातर बहुत माइल्ड डिजीज था. तो हुआ क्या कि उस टाइम तक वायरस जो है ना वो टेम हो गया, जिसका नाम वायरस पालतू कुत्ता हो गया. उस टाइम तक हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ गई. तो धीरे धीरे करके जब हम उसको एक्सपोज करते हैं तो चीजें वैसी खराब नहीं होती हैं. इसीलिए कहा जाता है कि इसको फॉलो करें. तो बस वही जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो किया जा रहा है उसको फॉलो करें. और जैसा खालिद भाई आपने बताया था शुरू में, कोई भी बाहर से सामान ला रहे हैं जो कि पॉलिथीन है या फिर कागज का सामान है, उसके ऊपर वायरस कुछ देर तक रह सकता है सरफेस पे. कितनी देर तक रह सकता है एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन कहते हैं 4 घंटे, कुछ चीजों में 24 घंटे रहता है, पेपर नोट पे रह सकता है. तो उसको आप बाहर वाले कमरे में रख दें, उसको टच नहीं करें, उसको अगर प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके फिर उसको खोलें. और अगर आपने टच भी कर दिया है उसके फौरन बाद अपने हाथ को अगर आप सैनिटाइज, तो नॉर्मल सैनिटाइजर यहाँ पे अवेलेबल है. सऊदी अरबिया ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है, क्वालिटी जो है बहुत अच्छी मेंटेन्ड है. उससे आप अपने हाथ को साफ कर लें, उसके बाद आप किसी भी चीज को टच कर सकते हैं, उसके बाद उसको फेंक दें. दिस इज व्हाट आई नो. फारूक भाई कुछ आप ऐड करेंगे? फारूक भाई सुन नहीं रहे थे. चलिए नहीं, कुछ और खालिद भाई कुछ डायरेक्ट में कवर कर, आई थिंक ऑल सारी चीजें कवर हो गई हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये, आई थिंक दिस इज रेलेवेंट टू ऑल ऑफ अस, जो हम लोग के दिमाग में, सबके दिमाग में आता है कि व्हेन विल एयर ट्रैवल बिकम सेफ. और इसी से रिलेटेड जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उन साहब ने ये लिखा था अपने कमेंट में कि एरोप्लेन्स हैव फैसिलिटीज टू रिड्यूस इन्फेक्शंस या कंटेन इन्फेक्शंस, लेकिन इसका अजम्पशन, तो इसका मतलब है कि जो भी इन्फेक्शन हो रहा है एयर ट्रैवल में, दैट इज हैपनिंग एट द एयरपोर्ट. आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू. लेकिन would anyone want to comment के क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं ट्रैवल के रिलेटेड? So एयर ट्रैवल में आप लोग एक बड़े हवाई जहाज में बैठे होते हैं और उसमें एयर सर्कुलेट करती है विद इन द प्लेन, क्योंकि बाहर हवा जो है वो सब जीरो होती है, -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर हवा होती है. तो अगर उसको अंदर लाएंगे तो बहुत ज्यादा हीट का इस्तेमाल होगा. तो इट इज नॉट वेरी राइट वे टू डू इट. तो होता क्या है, हवाई जहाजों के अंदर जो हवा होती है वो लोकली सर्कुलेट करती है और उसमें फिल्टर लगे होते हैं, हिपा फिल्टर कहते हैं उनको, जिससे कि उसको प्योरीफाई करके वापस फेंकते हैं अंदर हवा को. लेकिन क्योंकि हवाई जहाजों के अंदर इतने करीब बैठे होते हैं आप एक दूसरे के, कि आप फिल्टर वाली जो हवा होती है वो हर आदमी इनहेल नहीं करता है. तो यू इनहेल द एयर फ्रॉम नेक्स्ट टू ईच अदर, पीपल अराउंड यू. तो इस वजह से make sure that air travel, I can tell you, air travel is not going to be safe anytime soon unless and until प्लेन के डिजाइन चेंज करें और एयर सर्कुलेशन जो है वो वैसे उसी स्टैंडर्ड भी रखें जैसे कि थिएटर्स में होता है.
ऑपरेशन थिएटर्स में होता है, which is not going to happen क्योंकि it will be very expensive. जी, तो I think the summary is basically कि air travel will always be risky in the short term at least, जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती या कोई ट्रीटमेंट नहीं जिसका होता है उसको। एक क्वेश्चन है फारूक के लिए स्पेसिफिकली कि do you know if there are any difference in strategies between the UAE and Saudi? I think there is difference. In UAE, the treatment is not accessible to all, free of cost. This is the problem. At stage 3, especially if the patient is having respiratory symptom, it is not free for all. So they have to do more exercise. They are having a lot of difficulties in getting admission there. But in comparison to that, Saudi government had made a lot of privilege for all people, for all, especially if they have severe symptoms, easily they are taken in the hospital. Okay. Well, I hope that answers this question. एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड के नहीं सर, एक क्वेश्चन है इज इट एयरबोर्न के मतलब ये आई थिंक क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और कुछ मैसेजेस आए कि एयरबोर्न है, कुछ आए कि नहीं है। This is not airborne. तो आई थिंक उसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एयरबोर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो होता है कि आपके मुंह से कोई ड्रॉप निकली और वो डायरेक्टली ड्रॉप जो है वो किसी की बॉडी पे चली गई या किसी सरफेस पे गई जहां से वो किसी और ने उसको छुआ और अपने बॉडी में या तो आंख टच करी या मुंह टच करा या कुछ खा लिया और मुंह में चला गया। तो दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एयरबोर्न इन्फेक्शन है कि वो हवा में फ्लोट कर रहा है वायरस और आपने उस वहां से इनहेल कर लिया। तो आई थिंक द कंसेंसस इज के in purely technical terms this is not airborne, लेकिन क्योंकि बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो काफी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं थ्रू द एयर। किसी ने छींका तो काफी दूर तक जा सकती हैं, वो डायरेक्टली ड्रॉपलेट ही जाके आपको आपके ऊपर आपकी बॉडी पे आ सकती है या किसी ऐसे सरफेस पे आ सकती है जहां से आप उसको फिर पिकअप करके अपनी बॉडी में ले सकते हैं। तो आई थिंक द डिस्टिंक्शन जो मुझे लोगों से बात करके समझ में आया, वो लोग ये समझना चाहते हैं कि हवा के थ्रू आ सकता है या नहीं आ सकता है या सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट से ही आता है। तो ऑल्दो टेक्निकली इसको हम एयरबोर्न नहीं कहेंगे, लेकिन एयर के थ्रू ट्रैवल करके ड्रॉपलेट्स आपको इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से थोड़ा 1-2 मीटर दूर खड़े हैं तो आपको नहीं होगा। अगर इफ देयर इज सफिशिएंट, सपोज कोई बहुत तेज हवा चल रही है और किसी ने छींका, तो दिस इज पॉसिबल कि उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं दे आर कैरीड टू यू थ्रू द एयर। तो एक पॉसिबिलिटी वो होती है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ किसी को छुएंगे या किसी के बिल्कुल पास जाएंगे तभी होगा। चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप किसी के करीब हो। तो और एक क्वेश्चन है, कैन यू बी एसिम्प्टोमेटिक विद COVID-19? Lot of patients are asymptomatic. Yes. I think ये हमने पहले एड्रेस किया था कि 85%। You can be completely asymptomatic or you can have very mild illness. There are some patients who are totally asymptomatic. Just by contact tracing, they are getting positive and they are having no symptoms at all for 14 days. इनफैक्ट इंडिया में तो ये कहा जा रहा है कि 80 से 85% से ज्यादा लोग टोटली एसिम्प्टोमेटिक हैं, एकदम टोटली एसिम्प्टोमेटिक। जाके आप टेस्ट कराइए तो आपको मालूम चलेगा साहब कि आपको कोरोना हो गया है। दो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। कुछ एक चीज और है कि वो जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं उनका रेट ज्यादातर स्टडीज ये बता रही है कि कम है एज कंपेयर जो जिनको सिम्टम्स हैं, जैसे कि जिसको फीवर है, जिसको खांसी है, उनके से ज्यादा लोगों को जो है मर्ज फैल रहा है। ओके, हम लोगों को यूनिवर्सल प्रिकॉशन के तहत हमेशा ये पहनना है मास्क मार्केट वगैरह में, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक से थोड़ा कम है ट्रांसमिशन। इफ आई एम राइट, शमी भाई, फारूक भाई या कोई और सर कुछ कहें। ज्यादातर स्टडीज ये कह रही हैं कि एसिम्प्टोमेटिक से रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम है, रेट ऑफ इन्फेक्शन दूसरों को। आई थिंक लास्ट वीक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं और हबीबा, एक पेपर था उसमें ये था कि यू कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, यू कैन बी इन्फेक्टिव हो सकते हैं आप फॉर अप टू 3 or 4 days बिफोर you know you show any symptoms। तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है आपकी बॉडी में और वो इन्फेक्शन शो अप नहीं करेगा किसी टेस्ट में या आपके सिम्टम्स में,
or you could still be shedding virus. So it is possible कि asymptomatic लोग जो हैं they are still causing spreading the infection. खुद इन्फेक्ट नहीं, खुद उनको सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन वायरस जो है उनकी बॉडी से फिर भी निकल रहा है. तो इट इज पॉसिबल. क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि एसिम्प्टोमेटिक की वजह से कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी. इसलिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब जैसे तुमने कहा था तारिक शुरू में कि यू हैव टू अज्यूम कि एवरीवन इज इन्फेक्टिव. बस आप मतलब आप ब्लाइंडली ये समझ लिए. और फिर सॉरी वजी भाई आप कुछ कह रहे हैं. बस एक वेरी क्विक कमेंट, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस. ये जो कॉमन पर्सन है उसके लिए जो मैसेज मैं देना चाहूंगा, मेडिकल स्टाफ तो हम लोग वी आर वेल अपडेटेड अबाउट द थिंग्स, नॉट टू टेक दिस वायरस लाइटली. दिस वायरस डिफाइज ऑल लॉजिक, all immunity, all age, all comorbidity. I had one of my very close relative. He was relatively young, 50s, no comorbidity, never admitted in the hospital, never had any major diabetes, hypertension, nothing. But he traveled and he was asymptomatic, and suddenly he started deteriorating, and in the best of hospital in AIMS with the best of facility, ultimately he expired. जैसे तारिक ने कहा, not every patient, every person to be considered as COVID positive, every person. So ये अगर बेसिक चीजें हम लोग कर लें तो बहुत सी चीजों से बच जाएंगे. मुस्लिम कम्युनिटी का अमूमन जैसे मैसेज आ रहा है पुरानी दिल्ली में, या मुसलमान लोग हैं नमाज के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग की कम्युनिटी के लिए एजुकेशन, ये अगर एजुकेशन हो जाए तो शायद बहुत सारी, नॉट टू टेक इट लाइटली, इट डिफाइज ऑल लॉजिक. कोई ये रूल और फॉलो नहीं कर रहा है ये वायरस. तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और पर्सनल एक्सपीरियंस है घर के अंदर का. Thank you, Vajib. I think yeah, if there's one take home message, this should be it. Okay. अच्छा एक क्वेश्चन आया है हबीब भाई एंड शमीम के लिए कि someone suggested to take folic acid. How far, I mean, folic acid से कुछ आप लोग का एक्सपीरियंस है, कुछ फायदा है या नहीं? हेलो, एक वीडियो आया था शायद, इसमें म्यूकोसिलरी रिफ्लेक्स के बारे में कुछ कहा गया था कि जिसमें कोविड जो है की वजह से वो जो एक मूवमेंट होता है म्यूकोसिलरी उसका, जिससे वो थ्रो कर देता है सब कुछ बाहर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, वो थोड़ा डेफिशिएंट हो जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड. उसमें ये कहा गया था कि फोलिक एसिड से देयर इज सम इंप्रूवमेंट, बट देयर इज नो डाटा और नो ट्रायल टू प्रूव दिस. भाई फोलिक एसिड इज अ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन. अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो सिवाय नौजिया के और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बाकी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा. दैट इज वन वेरी सिंपल थिंग अबाउट इट. दूसरी चीज ये है, फोलिक एसिड का अकेला प्रूवन रोल जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज आर टोल्ड टू टेक इट so that they don't develop a deficiency or adversely affect the newborn. सर यही चीज तो कोरोनिल के साथ भी है. कोरोनिल भी हम लोग खा लें. ले 52 भी खा लें आप. क्योंकि कोरोनिल के बारे में जो है जो ये एडवर्टीजमेंट उन्होंने कर दिया, जो उनको काम करना था उन्होंने मार्केट में इसको बता दिया लोगों की भाई ये फायदा करेगा. सरकार हमें जो है परमिशन नहीं दे रही है, बट यस यू कैन टेक इट. And actually, I'm telling you, it is going to sell like a hot cake. Well, we are not here to discuss various modalities of treatment that are unproven. What is proven, we can talk about. वरना तो अल्लाह का फजल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने hundreds of thousands medications रख रखी हैं मार्केट में. So, I mean, we can't discuss them all. जी, I think उन चीजों पे फोकस करें जो एक्चुअली कल कुछ हो काम. तो एक क्वेश्चन है, दो लोगों का क्वेश्चन है, एक इंडिया के बारे में और एक जीसीसी के बारे में कि व्हेन आर स्कूल्स गोइंग टू रीओपन. आई डोंट नो फारूक एंड तारिक, कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है इस चीज की या नो? तो दिसंबर से पहले तो नहीं होगा. दिसंबर से पहले नहीं होगा मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है. दिसंबर, ओके. यहाँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं लोग कि मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर दे कैन प्लान, बट आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल. मैं अपना यहाँ का एक्सपीरियंस बताया था. यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो है कुछ डिक्लाइन होने लगे थे, और तो इसलिए उन्होंने कुछ शहरों में कुछ स्कूल खोल दिए, और मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में फिर बंद करने पड़े सारे स्कूल. मतलब स्कूल नहीं, पूरे शहर बंद करने पड़े स्कूल्स के चक्कर में. तो आई थिंक
आंसर किसी को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी तो शायद नहीं हो पाएगा। तो जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, नो सिटी इज सेफ एक्चुअली। चाइना में इन्होंने क्लेम किया कि वहां खत्म हुआ, बीजिंग में स्टार्ट हो गया। तो इसलिए वेव्स पे वेव्स आती रहेंगी जब तक के हर्ड इम्यूनिटी हमारे यहाँ नहीं आ जाए। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ खालिद शमीम से, वेंटिलेटर पे दोस पेशेंट्स हु आर ऑन वेंटिलेटर, ऑलरेडी ऑन वेंटिलेटर, शमीम, व्हाट इज द मोर्टेलिटी रेट ऑन इन दोस पेशेंट इन इंडिया? 95%. Very high. Even here, even here, it's too much, yeah. 95% mortality on ventilator. In our college, 100%. Here we are Because having 5% they are in ARDS. Yeah, They are in usually ARDS. here in our hospital, the data is suggesting 5 to 10% more. Initially, they were telling 5%, but now it increased up to 10% only on ventilator. Farooq, Yeah. the Yeah. thing is, India में ventilator is used as a last resort. Nursing care जो है, it Late intubation. requires a lot of input, which is not Yeah, there. true. ठीक है? तो इंडिया में तो वो बिल्कुल मरता हुआ मरीज वेंटिलेटर is the last stop before he is sent out. Okay? True. Except in some centers. Saudi Arabia में it is the first thing to be done. Yeah, they पहले ट्यूब करो, बाद में मरीज का इलाज करो। True, ठीक true. है? तो वहां पे mortality जो है वो definitely कम होगी, क्योंकि many of those patients do not require ventilator in the first place. Yeah, true. Okay? तो इसका मतलब the mortality, initial mortality जो कि चाइना में देखी गई, यूएस में अब देख रहे हैं हम, it is anything between 30 to 50%. वो ये कह रहे हैं, हर जगह अब ये बात हो रही है कि everybody should be on anticoagulation. They are saying there is a vascular element to it. Yeah, true. ठीक है? और उसके लिए anticoagulation से mortality is getting improved. ठीक है? So एक all those observation, things are- sir, yeah, one observation I want to share, sir, more here in this webinar. Isolated headache is also one of the presentation in COVID we have observed. The only headache. यानी Sir, without आप any, मुझे बताएंगे हेडेक क्यों होता है? हाइपोक्सिया की वजह से। maybe, Hypoxia but, driven but headache this है is the ये। only symptom we are Yeah. getting in the patient who is So, complaining. Yeah. Asthma के अंदर, बच्चों के अंदर, the one symptom that you ask for is headache. Yeah, true. सांस फूलना और वो सब अलग जगह है, ठीक है? Because sir. before silent chest the headache comes on. पहले अब कुछ लोग, आई थिंक क्वेश्चंस हम लोग के खत्म हो गए। 2-3 लोगों ने अपने हाथ उठाए हुए हैं, मैं एक एक करके आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। रेहान आई कम टू यू इंशाल्लाह अभी 1 मिनट में। कमर सादा साहब हैं एंड डॉक्टर शेख अब्दुल्ला रियाद में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई आप अनम्यूट हो गए, आप यू कैन स्पीक नाउ। My question especially to those who are working in Saudi Arabia is that to Dr. Also Tariq and also Farooq. Farooq, ये बताओ कि if the modalities are the same, so why so much of less mortality in UAE in compared to Saudi? I don't think the mortality is less in UAE. Yes, you can see that it is a Mortality is less than 1% in Saudi Arabia. It is 0.6 in UAE, 0.6 fatality rate. Yeah, it And is. per million it is only 30 in UAE, but here it is 53 in Saudi Arabia. Saudi Arabia, one problem we noticed in our hospital, the late presentations of laborers, especially the laborers, those who are working in camps, they are presenting very late, even with the saturation 70 and 65, sometimes 70 like that. They are presenting in triage, and we saw the 70 saturation and we are rushing to the patient. So late presentation is one of the cause why there is maybe there is relatively more death rate here. So this is one of the reasons. But here the health facilities are accessible, but the awareness is less in the people. I'm talking about the data actually. Okay. And country depend upon the expatriate. Okay, either the UAE or either the Saudi Arabia. Both having the young leader also, and both are very dedicated to their nation. But what is the strategies difference? I am talking about that one. Why they are managing, I think, better than here, or what the main problem actually? I have no experience. I think Abdullah bhai ek kaam karenge. I think because we are planning more programs, maybe एक UAE के लोगों के साथ कर लेंगे, and उसमें UAE से कुछ लोगों को बुला लेंगे, क्योंकि
क्योंकि आई डोंट हो सकता है यहाँ पे किसी को मतलब हो सकता है वहाँ के बारे में डेटा ना पता हो। खालिद, जी, पॉपुलेशन साइज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। सऊदी की पॉपुलेशन 30 मिलियन है, यूएई की पॉपुलेशन उसकी आधी होगी, 1/3 है इसकी, 1/3 है। तो वहां पे अगर 53 हो रहे हैं और वहां 30 हो रहे हैं तो यूएई में ज्यादा डेथ्स हो रही हैं इसके हिसाब से। तो पर मिलियन की बात हो रही है, पर मिलियन वहां पे 30 है, यहाँ पे 53 है। तो दैट इज नॉट अ बिग डिफरेंस, दैट इज नॉट अ बिग This is not डिफरेंस। significant. यूएई के अंदर यंगर पॉपुलेशन है कंपेयर टू सऊदी अरेबिया, रिमेंबर दैट थिंग आल्सो। So basically there is no much yani data here to back it. Actually this is a main okay, Khalid has suggested it can be done later on, no problem. मेरे ख्याल से एक और मीटिंग में यूएई से किसी को बुला लेंगे। आई थिंक that's a good actually approach. It will be good approach. Thank you, Khalid. And thank you, Farooq also. Thank you, Abdullah भाई। कमर सादा साहब कुछ कहना चाह रहे थे आई थिंक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल मेरा भाई जो है खमीस मुर्शिद में कई दिनों से बीमार है। he was having very high fever. He had taken paracetamol as directed by physician. अभी मेरी उससे बात हुई, वरना तो ये काफी मतलब ये जो प्रोग्राम टोटल प्रोग्राम है फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और पूरी इंफॉर्मेशन मैं ले रहा था। मैं पर्टिकुलर केस वाइज में बात कर रहा हूँ। मेरा भाई जो है वो ही इज हैविंग वेरी सीवियर व्हाट यू कॉल हेडेक। 4 दिन से जो है उसको सर में इतना दर्द है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉडी पेन है और चेस्ट थोड़ा वजन है। इसमें मुझे कोई मतलब यहाँ से कोई बता सकता है? मतलब मैं वहां जा भी नहीं सकता, इसके लिए वो खुद मना कर रहा है कि आप ना आए वहां पर, क्योंकि वहां का सिचुएशन कुछ अजीब है। वो किसी कंपनी में काम करता है तो वहां पर कोई है भी नहीं। मतलब वो यहाँ पर कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है ये क्या वजूहत हो सकती है और मैं उनको क्या बता सकता हूँ कि आप मतलब ये प्रिकॉशन ले। मैं अपनी तरफ से तो जितनी चीजें जानता था मैंने उनको बता दी थी, लेकिन यहाँ पर पूरे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, प्रोफेसर्स हैं, काफी प्रोफेशनल लोग हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता था प्लीज। One thing I want to suggest here that headache itself can be the presentation of COVID, but don't focus on COVID. Fever with headache is a dangerous sign. If he had fever with headache, so you must think of some serious condition it is happening with that guy. We have to rule out meningitis first of all. So we have to think of some serious illness which is happening. So we have to rule out first of all meningitis, and second, COVID can also present with isolated headache and fever. So COVID testing is mandatory in this patient. So these two are my suggestion, that the patient should visit to the nearest hospital and the COVID testing will be done, and the physician will examine for any source of meningitis in that patient, any focus, any meningeal signs, if any possibility of meningitis to be ruled out. कमर साहब आपको मुझे अंदाजा नहीं, आप मैं शायद शुरू में समझ नहीं पाया। वो आपके भाई की बात हो रही है? ये जी मेरे भाई की बात हो रही है। वो घर में है या हॉस्पिटल में है अभी? वो अभी घर में है। वो हॉस्पिटल ज्वाइन होना चाह रहे थे। कई बार उन्होंने हॉस्पिटल गया, वो विजिट किया उन्होंने, तो वक्तन फवक्तन जो है वो तरह तरह की मतलब मेडिसिन दिए उन्होंने। तो अब तक उनका कोई वो नहीं है रिजल्ट, मतलब मुतमईन नहीं है, काफी परेशान है। मैं अभी भी बात करके मुझे ज्यादा परेशान हुआ। अभी कोविड की टेस्टिंग कल उन्होंने शायद डेट दिया है उनको, इससे पहले उन्होंने अवॉइड करते रहे, तो शायद उनको कल जो है कोविड टेस्टिंग के लिए शायद अपॉइंटमेंट मिला है। लेकिन वहां पर रिस्पांस बहुत कम है। वहां पता नहीं मुझे, मैं वहां की नेचर को नहीं जानता हूँ खमीस मुर्शिद की। शायद लोकल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं और अजनबियों को जो है आई मीन टालते हैं, या ऐसा कुछ यहाँ पर कोई है खमीस मुर्शिद से? हाँ, जस्ट आई वुड लाइक टू कमेंट कमर साहब के, मैं तो असीर हॉस्पिटल में हूँ जो कि डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल अब डिक्लेयर किया है। तो काफी इंडियन पेशेंट्स हैं जो असीर में हैं, आईसीयू में इंट्यूबेटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपैट्रिएट और नॉन एक्सपैट्रिएट। मगर कोविड पॉजिटिव होना चाहिए। आप एट द अर्लीस्ट कहीं भी खमीस मुर्शिद में या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल somehow you get COVID. Once COVID is there, I think they will transfer the patient to असीर हॉस्पिटल। और असीर हॉस्पिटल में एक बार आ जाएगा तो थोड़ा सा कम से कम ये होगा। और कोई जगह नहीं है, अभी डेडिकेटेड असीर हॉस्पिटल किया है आभा में।
Thank you. और दूसरी चीज कमर भाई, थैंक यू वजी भाई, ये चीजें, लेकिन आई थिंक जैसे फारूक ने कहा कमर साहब के, इट इज पॉसिबल कि उनको कुछ और बीमारी हो, तो आई थिंक हेडेक एंड फीवर या बॉडी एक ऑन, मतलब सिर्फ इतना ही होना, इवन ये पैंडेमिक ना होता तब भी ये काफी डेंजरस सिम्टम्स हैं, तो उनको हॉस्पिटल तो जाना ही चाहिए जरूर। और एक्चुअली डॉक्टर खालिद, आपका खमीज की जो डेमोग्राफी और टोपोग्राफी है, बिकॉज इट्स 8000 फीट अबव सी लेवल, बिकॉज ऑफ पॉलीसाइथीमिया, बिकॉज ऑफ हाइपरकॉग्निबल स्टेट, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, लॉट ऑफ कोमॉर्बिडिटीज आर देयर। तो जैसे उन्होंने कहा मेनिंजाइटिस है, के साथ साथ और भी मेडिकल इश्यूज के लिए इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो बिहेवियर ऑफ द डिजीज है पेशेंट्स का, बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड, हाइपरकॉग्निबल स्टेट्स होते हैं यहाँ पे, स्ट्रोक और ये सीएनएस मैनिफेस्टेशन, और कोरोना में तो सीएनएस होता ही है, तो शुड बी फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड अलोंग विद डिफरेंशियल एज अ कोविड। थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू वेरी मच। मैं इंशाल्लाह अभी उनको कॉल करता हूँ, देखता हूँ क्या है। मैं उनकी मतलब दिन में 2-3 बार उनको कंटिन्यूसली वैसे कॉल करता ही हूँ, लेकिन अभी उनकी आवाज़ से और उनके जो साइन से मुझे लगा कि मतलब थोड़ी बहुत मुझे पैनिक हुई। इससे पहले तो मतलब वो खुद मुझे जो है दिलासा देते थे, वो मुझसे खुद बात करते हैं, नहीं आप फिक्र मत करें। वो थोड़ा क्या बोलते, बहुत रिलीजियस हैं, मतलब अल्लाह के ऊपर तवक्कल है, तो सब उनका वो स्टाइल था कि मैं इंशाल्लाह मेंटेन कर लूंगा। लेकिन अभी वो बात करने से और मुझे ये इसमें जो है ज्वाइन होकर बात करने का मौका मिला, तो मैंने कहा कि इसका फायदा उठाऊं और आप लोगों से पूछूं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। बस यही था मुझे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। शुक्रिया, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा दे आपके भाई को और जल्दी सेहत अता फरमाए इंशाल्लाह। जी थैंक यू, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और आई थिंक इसके बाद आई थिंक रेहान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। एक मिनट रेहान। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था माशाल्लाह, बहुत अच्छा अटेंड करके इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी मिली आप लोगों से, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरा ये था कि मेरे एक कॉलीग हैं और मेरे फ्रेंड भी हैं, दिल्ली में रहते हैं और इस वक्त हॉट स्पॉट एरिया में है, और उनकी पूरी फैमिली को, जैसे कि उन्होंने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट किया और कुछ मेडिसिन उन्होंने ली थी, लेकिन पूरी फैमिली को उनके फीवर, जो भी सिम्टम्स आपने जो अभी बताए हैं कोविड के, वो पूरे सिम्टम्स उन लोगों के अंदर थे सारे के सारे। खैर वो 14 दिन आइसोलेशन में घर में ही रहे बंद सारे। उसमें से जो उनके 3-4 यंग बच्चे थे वो तो जल्दी ठीक हो गए, और दोनों हस्बैंड वाइफ को करीब 15 दिन से ज़्यादा लगे। तो अब क्योंकि उनका टेस्ट नहीं हुआ, हम बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोविड पेशेंट ही थे। तो अब क्या वो पोटेंशियली किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, या अब या मतलब कहना चाहिए कि अब वो बिल्कुल सेफ हो गए, या अभी उनको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या करना चाहिए? मतलब इस पे क्या आप लोगों का, इस तरीके का अगर केस हो तो क्या करना चाहिए? अगर देखिए 15 दिन हो गए हैं तो, और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, मोर देन 3 डेज अगर कोई फीवर नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, देन ही इज नॉन इन्फेक्शियस। और अगर आपको ये चेक करना है कि उनको कोविड था कि नहीं था, देन यू हैव टू गो फॉर एंटीबॉडी टेस्टिंग। एंटीबॉडी टेस्टिंग, ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, शुक्रिया। और आपका रेहान कोई और क्वेश्चन? बस ये था, एक क्वेश्चन था आपका? नहीं बस, और मैंने जो सवाल उसमें उस वक्त किया था, असल में वो शायद सही से मैं कह नहीं पाया। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हम इंडिया में स्पेशली जो पेशेंट्स देख रहे हैं, तो असिम्प्टोमेटिक हो रहा है 80-90%, तो ऐसा क्यों है कि मतलब किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा सिम्टम, और किसी, हमने बहुत ये देखा कि अभी कुछ यंग्स में जो है ज़्यादा फैटेलिटी हुई, और बहुत सारे यंग्स जो हैं वो 30-35 ईयर्स एज में जो है एक्सपायर कर गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी में बिल्कुल सिम्टम नहीं है और किसी में बहुत ज़्यादा सीवियर है? और वो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था रेहान, उसमें ये होता है कि सब इंडिविजुअल्स जो है डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं किसी भी इन्फेक्शन को। तो कोई स्टैंडर्ड जो भी डेटा आता है, मतलब अगर हम ये कहते हैं कि ये यंग लोग अफेक्ट नहीं होते हैं और एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्ट होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यंग लोगों में से कोई भी अफेक्ट नहीं होगा या 100% सेफ है वो। तो उसका रिलेटिव रिस्क जो है वो कम है। तो अगर
एल्डरली पॉपुलेशन में 100 में से 90 लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो यंग पॉपुलेशन में 100 में से 20 लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो लेकिन कुछ लोग तो अफेक्ट डेफिनेटली हो सकते हैं, और वो डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल की अपनी जो बॉडी है उस पे, और क्या उसको बीमारियां हैं। तो इसलिए ये देखने में आता है कि यंग लोगों में ऑल्दो सिवियर इलनेस होती है, लेकिन रिलेटिवली कम नंबर ऑफ लोगों में होती है। तो मतलब लेकिन वो पोटेंशियली इन्फेक्ट कर सकते हैं दूसरों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोहम्मद जैगम खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट में। हेलो जी जैगम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपने सवाल वैसे पूछ लिया, लेकिन एक डॉक्टर साहब हैं यहीं पर जो रियाद में है, और वो बड़ा जबरदस्त तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि फॉलिक एसिड लिया जाए तो बहुत मामला अच्छे हो जाएंगे। हालांकि हमने उसको क्लियर कर दिया है, लेकिन अगर कुछ और रोशनी डाली जाए, वो भी अलीगढ़ से ताल्लुक वाले बने उन डॉक्टर साहब का, और उनकी बड़ी जबरदस्त क्लेम है कि मेरा बड़ा रिसर्च वर्क है उसके ऊपर कि फॉलिक एसिड से जो है मामला बहुत अच्छे हो जाते हैं। ज़ैगाम साहब, वो चाय के साथ तो नहीं ले रहे हैं? ये मैं पूछता हूँ, इंशाल्लाह ताला उनको कॉल करता हूँ कि चाय के साथ ले रहे हैं या चाय की जगह शक्कर की जगह ले रहे हैं। वो चाय में शक्कर की जगह ले रहे हैं। आई थिंक जैगम साहब, प्रॉब्लम वही है कि कोई जब तक कोई एविडेंस, सॉलिड एविडेंस नहीं होती किसी चीज के लिए, तो उसको ये कहना कि इसकी वजह से कुछ हो रहा है वो बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है हो रहा हो सकता है ना हो रहा हो, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि फोलिक एसिड से प्रिवेंशन भी हो सकता है या क्योर हो सकता है। तो ये कहना मेरे ख्याल से, अब मैं जानता नहीं कौन है वो, मैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन आई थिंक ये इनएक्यूरेट है कि अगर कोई ये कहे कि फोलिक एसिड की वजह से या तो प्रिवेंट हो रहा है या ट्रीट हो रही है। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि यूके में खासकर कि फॉलिक एसिड का टेस्ट जो है ब्लड के अंदर करीब करीब हर मरीज का जीपी कर देता है, और यहाँ पे जिसका भी फॉलिक एसिड लो होता है उसको ट्रीटमेंट मिलता है फॉलिक एसिड का। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यूके के अंदर फिर कोविड होना नहीं चाहिए था लोगों को, लेकिन वी आर सीइंग अ लॉट मोर केसेस कंपेयर्ड in comparison size of the population that we have. So folic acid ठीक है, definitely it can boost the immunity, लेकिन as a treatment या as a cure बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ये एक रीजन हो उसका। ठीक, आप उनके साथ चाय तो जरूर पी लीजिएगा, बाकी फॉलिक एसिड जो चलिए। एक क्वेश्चन है सोहेल अख्तर साहब का के, सॉरी इनके यहाँ खाना भी लग गया है वैसे, लेकिन मैं एक मिनट क्वेश्चन जल्दी से वो कर दे। सोहेल ने पूछा है कि चाइना में इतनी कम मोर्टालिटी क्यों है। सोहेल, आई डोंट थिंक, मतलब उसके मल्टी फैक्टोरियल रीजंस हैं। चाइना में आई डोंट नो, आप लोगों ने भी वीडियोस देखे होंगे शुरू में जो उन्होंने जिस तरह कंट्रोल किया था, और हॉस्पिटल्स में किस तरह की फैसिलिटीज थी, कैसे आइसोलेट किया लोगों को। पूरा वुहान एक शहर जो है 11 मिलियन लोगों का, उन लोगों ने दे मैनेज टू आइसोलेट द होल पॉपुलेशन बेसिकली, और उनको घरों पे खाना मिलता था और दवाइयाँ मिलती थी। तो आई थिंक जिस लेवल पे उन लोगों ने किया था, दैट कुड बी वन रीजन के हो सकता है इस वजह से वो कंट्रोल किया हो। दूसरा रीजन जो है, जो ज्यादा कॉमन है पब्लिक परसेप्शन में, वो ये है कि चाइना वाले झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है बेसिकली, हम लोगों को एक्यूरेटली मालूम नहीं है, लेकिन जिस लेवल पे उन लोगों ने कंट्रोल करा था और एफर्ट्स करे थे शुरू में, मतलब उन्होंने उस शहर को, उस प्रोविंस को कंट्रोल करने के लिए दे ट्रांसपोर्टेड 40 या 50,000 मेडिकल पर्सनल फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। तो इतने तो जैसे हम लोग अब यहाँ पे हैं कि इतने तो हमारे पास पूरे कंट्री में डॉक्टर्स हैं ही नहीं कि हम मतलब किसी और को दे पाए। तो आई थिंक चाइना का स्केल थोड़ा अलग ही होता है हर चीज में। तो शुक्रिया खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और दूसरी चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये, इंडिया हो या चाइना हो, अगर आप पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप केसेस देखना शुरू करेंगे, तो अमेरिका के लेवल पे पहुंचने के लिए यू हैव टू हैव a couple of crore of people,
infected and with disease. तो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है इन दोनों मुल्कों का, तो वो आपको लेवल नहीं देखने को मिलेगा इन मुल्कों में। जी चलिए शुक्रिया। चले अच्छी खासी क्या टाइम, हम लोगों ने 1 घंटा प्लान किया था, 3 घंटे तो हो गए। मेरे ख्याल से अब मैं अगर किसी और को कुछ बात करनी हो या कमेंट्स करने हो, एक काम करते हैं, सबको अनम्यूट कर लेते हैं। अगर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह भाई, फैज भाई एंड स्पीकर्स ऑब्वियसली। मेहताब जो है वो बैकग्राउंड में है, उनका सिर्फ फोटो दिख रहा है, वीडियो ऑफ है। मेहताब जो है रेडियोलॉजिस्ट हैं अलीगढ़ में एंड बहुत हम लोग इसके प्रोग्राम्स में हेल्प करते हैं। वो बैकग्राउंड में रहता है। जो मेडिकल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें रेडियोलॉजिस्ट का जो इनपुट है काफ़ी होता है, लेकिन इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, तो इसलिए we carried it for about 3 hours now. So, जी this talks about the success of the program actually, and right. at